ابیر 4 بجے ساحل سمندر پہ پہنچ گئی تھی اور اب زی کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ نظر منتظر ہے تیری آج بھی، دل کسی اور سے آشنا ہی نہیں۔ میں کیوں راستہ دوں کسی اور کو جب کوئی تیرے جیسا بنا ہی نہیں۔ ابیر نے زی کے قدموں کی چاپ سن کر شعر پڑھا۔ کبھی کبھی مجھے گمان ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں، کیونکہ تم جیسی پیار کرنے والی سچی محبت ملی۔ ذیشان ابیر کے پاس بیٹھ کر بولا، لیکن پھر مجھے گمان ہوتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بدقسمت انسان ہوں، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے محبت کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ذیشان افسردہ ہو کر سامنے سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ زی، تم ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تم جانتے ہو میرے لیے تم سے زیادہ کچھ اہم نہیں۔ مجھے پیسہ کبھی اہم نہیں لگا، میرے لیے تمہاری محبت کافی ہے۔ ابیر ذیشان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ذیشان پلیز آنٹی کو بھیج دو میرے گھر رشتے کے لیے۔ امی ابو شاید رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں میرے لیے۔ ابیر سنجیدگی سے ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ابیر ایسا نہیں ہوتا یار، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے والدین پوچھیں گے میں کیا کرتا ہوں، میں کیا کماتا ہوں، میں ان کی بیٹی کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتا ہوں تو میں کیا جواب دوں گا؟ ذیشان شرمندہ سا ہو کر ابیر سے بولا تھا اور سر جھکا گیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم پلیز آنٹی کو بھیج دو، باقی سب میں خود دیکھ لوں گی، ابو اور امی کو میں خود منا لوں گی۔ ابیر بضد ہو کر بولی۔ اسے ذیشان پر بہت ترس آیا تھا، لیکن وہ یہ جانتی ہے کہ شادی کے بعد وہ خود اس کا ساتھ دے گی اور مل کر گھر چلائیں گے وہ دونوں۔ ٹھیک ہے ابیر، پرسوں اتوار ہے، میں بھیج دوں گا تمہارے گھر ماں کو۔ ذیشان نے ابیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے زی، میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے، ابو بھی گھر آنے والے ہوں گے۔ ابیر ذیشان کو گہری سوچوں میں چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ دادو، میں آپ کو بتا رہا تھا، اتنا مزہ آیا۔ آپ کو پتہ ہے ابیر آپی اتنی اچھی، اتنی پیاری ہیں، اور عثمان بھائی بہت اچھے ہیں۔ ولی جب سے پارک سے واپس آیا تھا صبح سے دادو کا سر کھا گیا تھا، چند گھنٹوں میں وہ ان دونوں سے کافی اٹیچ ہو گیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بچے، میں کل تمہارے ساتھ جاؤں گی، میں تمہاری آپی اور تمہارے بھائی سے ضرور ملوں گی۔ آخر کار دادو کو یہ بولنا پڑا تاکہ ولی اب خاموش ہو جائے۔ سچ میں دادو، آپ ساتھ چلیں گی؟ کتنا مزہ آئے گا نا مجھے کل، انتظار رہے گا۔ ولی دادو کے گلے لگ کر خوشی سے بولا اور بھاگتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابیر جلدی چلتے ہوئے جا رہی تھی کہ اچانک سامنے سے آتے ہوئے شخص سے ٹکرا گئی۔ سوری، دونوں نے ایک ساتھ بولا تھا، لیکن پھر دونوں نے جب ایک دوسرے کی شکل دیکھی تو غصہ آ گیا۔ ارحاب، جو آفس سے ڈائریکٹ ساحل سمندر آ گیا تھا ریلیکس ہونے کے لیے، اس آفت کی پوریا سے ٹکرا گیا۔ اوہو بزرگوں، دھیان سے چلا کرو، یا خوبصورت لڑکیوں سے ٹکرانے کی عادت ہے۔ ابیر نے ایسی بات بول کر ارحاب کے غصے کو مزید ہوا دے دی۔ شٹ اپ، ورنہ ایک چماٹ پڑے گی، ساری خوبصورتی ختم ہو جانی تمہاری ایڈیٹ۔ ارحاب تو جیسے جل بھن گیا تھا۔ ارے، آپ کی ہڈیوں میں اتنی جان ہے کیا جو مجھے چماٹ مار سکیں گے آپ؟ دھیان سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہیں لکوا نہ پڑ جائے آپ کو۔ ابیر اس کو سڑتا پیر دیکھ کر شرارت سے بولی، بتاتا ہوں تمہیں کہ کتنی جان ہے مجھ پہ۔ ارحاب غصے سے اس کی طرف بڑھا، لیکن ابیر نے دوڑ لگا دی۔ ارحاب بھی اس کے پیچھے بھاگا، لیکن لوگوں کو دیکھتے وہ وہیں رک گیا۔ ابیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ رکا ہوا تھا، تو وہ بھی اس سے کافی فاصلے پہ کھڑی ہوگی اور ہنستے اسے آواز دے ڈالی، ارے انکل، تھپڑ، او سوری، میرا مطلب چماٹ مارنے نہیں آنا کیا؟ چی چی، بس تھک گئے؟ ارے دیسی چوزے کی یخنی پیا کرے، طاقت آئے گی آپ میں، طاقت۔ ابیر ہنستے ہوئے بول کر بھاگی، اب نظر آئی یہ کبھی تو اس کی ہی یخنی بنا کر پی جاؤں گا میں۔ ارحاب نے خود سے کہا اور گاڑی کی طرف بڑھا تاکہ گھر جا سکے۔ دادو جلدی سے تیار ہو جائیں، 4 بجنے والے ہیں، ہمیں پارک جانا ہے۔
वली सुबह से 4 बजने का इंतज़ार कर रहा था क्योंकि वो उस्मान और बीर से जो मिलेगा। हाय अल्लाह जी, वली बेटा इतना प्यार, वो भी अजनबी लोगों के लिए। नहीं सही मेरा बच्चा, अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो हम दोनों की खैर नहीं समझे। तुम दादो, उसका इतना प्यार देखकर आप परेशान हो रही थी। ओहो दादो, जब आप मिलेंगी तो आपको पता चल जाएगा उनका। वली ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। अच्छा चलो फिर मिल लेती हूँ तुम्हारी आपी और भाई से, दादो खड़े होकर बोली। वली दादो को लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा। उस्मान, भूल गए क्या, पार्क जाना था। अभी छत पर चारपाई पे बैठकर पढ़ते हुए उस्मान के पास जाकर बोली। याद है मुझे तो, पर आप बहुत एक्साइटेड है, खैरियत? उस्मान शक्की से अंदाज में बोला। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, कहना क्या चाहते हो, खुलकर बोलो। अबीर के तो तन बदन में आग ही लग गई थी उस्मान की बात सुनकर। मतलब साफ है मेरी प्यारी बहना, आज अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो मैं अब्बू और अम्मी की तुम्हारी शिकायत लगा दूंगा कि बच्चों से मांग कर खाती है। उस्मान ने धड़ल्ले से कहा क्योंकि वो जानता था उसकी बहन आज इसलिए जाने का खुद से बोल रही, वरना तो मिन्नतें करना पड़ती थी। शर्म नहीं आती भरी बहन पर इल्ज़ाम लगाते हुए? मैंने तो वली से मिलना था इसलिए आई थी तुम्हारे पास, लेकिन तुम बहुत गंदे दिमाग के इंसान हो। अबीर उस्मान की बात पर भड़क उठी थी और रोते हुए नीचे चली गई थी। शिट यार, अब इस ड्रामा क्वीन को कौन मनाना पड़ेगा। उस्मान जल्दी से किताबें बैग में डालते हुए बोला और बैग उठाकर नीचे भागा। आपी यार, रो क्यों रही हो, मैं मजाक कर रहा था। सॉरी, प्लीज़ मान जाओ ना प्लीज़। उस्मान कान पकड़कर बोल रहा था। तुम बहुत बुरे हो उस्मान, इतना गलत सोचते हो मेरे बारे में। दिल तो नहीं कर रहा तुमसे बात करने का, पर तुम मेरे भाई हो तो मैं प्यार करती हूँ तुमसे। अभी जानबूझकर ज़बरदस्ती रोते हुए कह रही थी। आखिरकार वो दोनों 3:50 पर घर से पैदल चल पड़े। इरहाब अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा था। पीए दरवाज़ा खटका के अंदर दाखिल हुआ। सर, बीके कंपनी का मैनेजर आया है, प्रोजेक्ट से मुतल्लिक कोई अहम बात करनी है। अली ने इरहाब को इत्तला दी। अली, उन्हें मीटिंग रूम में बैठाओ, मैं आता हूँ। इरहाब ने एक सेकंड के लिए अली को देखते हुए कहा और फिर से लैपटॉप में मसरूफ़ हो गया। अली इरहाब के ऑफिस से निकलकर बीके कंपनी के मैनेजर के पास गया। उसे वहाँ से लेकर जाकर मीटिंग हॉल में बैठा दिया और इरहाब के आने का इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर बाद इरहाब ग्रे पेंट कोट में बड़ी वजिया चाल चलते हुए हॉल में दाखिल हुआ और सामने अपनी चेयर पर आकर बैठ गया। जी फरमाइए, क्या अहम बात करनी थी? इरहाम ने अपने सामने बैठे मैनेजर से पूछा। सर, ये प्रोजेक्ट है और सर ये पॉइंट्स चेक करें आप। बीके का मैनेजर अपना लैपटॉप ऑन किए इरहाब को सब डिटेल्स बता रहा था। ठीक है, मैंने आपके सारे पॉइंट्स नोट करवा लिए हैं, हम इन पॉइंट्स पर गौर करेंगे, इरहाब के खड़े होकर कहा और मैनेजर से हाथ मिलाकर वो अपने ऑफिस चला गया। वली और दादो पिछले 15 मिनट से उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा था वली उदास हो रहा था। वली मियाँ, इसीलिए कहा था कि किसी के साथ इतना दिल ना लगाओ, देखा ना उदास हो गया आप। दादो से वली का उदास चेहरा बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए बोल दिया। दादो, 10 मिनट और फिर हम घर चलेंगे। वली ने सामने पार्क की रोड को देखते हुए टूटे से लहजे में कहा। रहीम, गुल और दादो उनके आने की दुआ कर रहे थे। वहाँ बेंच पर बैठे उन्हें 20 मिनट हो गए थे। तभी सामने से अबीर और उस्मान भागते हुए आ रहे थे। वो दोनों वहाँ पहुंचकर रुके और अब खड़े सांस बहाल कर रहे थे और कुछ देर बाद दोनों ने सलाम किया उन तीनों को। मैं आप दोनों से नाराज़ हूँ, इतना लेट? वली मुंह फुलाए उन दोनों को देखकर बोला। सॉरी वली, एक्चुअली हम दोनों पैदल थे इसलिए देर होगी, आइंदा नहीं होगा ऐसे। अबीर ने अपने दोनों कान पकड़कर कहा। ओहो अच्छा, मुझे लगा शायद आप दोनों मुझे भूल गए। वली शर्मिंदा से होकर बोला। नहीं, हम नहीं भूलते, बस आप ना भूल जाना हमें। उस्मान ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से वली के गाल खींचते हुए कहा।
मैं 4 बजे से आके बैठा हूँ यहाँ, आपको लगता है मैं भूल जाऊँगा? वली उस्मान को हैरत से देखते हुए बोला। वली, अपने दोस्तों से मुझे नहीं मिलवाओगे? दादो वली का ध्यान अपनी तरफ करती हैं। ओह सॉरी दादो। उस्मान भाई, अबीर आपी, ये मेरी दादो हैं। वली सर पर हाथ मार कर उन दोनों से दादो का तारुफ करवाया। दादो, ये उस्मान भाई है और ये अबीर आपी। वली अब उन दोनों का दादो को बता रहा था। वो तीनों एक दूसरे से मिलते हैं। सलाम दुआ के बाद वो लोग बेंच पर बैठ गए। वली और अबीर एक साइड पर, जबकि उस्मान और दादो सामने वाली साइड पर, और रहीम गुल थोड़े से फासले पर खड़ा था। बेटा, कौन सी क्लास में हो आप? दादो ने अबीर की तरफ देखते हुए सवाल किया। दादो, मेरा 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, अबीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो सब आपस में छोटे मोटे सवाल के जवाब दे रहे थे। वली, उस्मान और रहीम गुल सामने क्रिकेट खेलने लगे। दादो और अबीर आपस में बातें कर रही थी। वली बहुत प्यारा बच्चा है, शरारती और क्यूट सा। अबीर वली को क्रिकेट खेलता देखकर दादो से बोली। हाँ, बहुत प्यारा है और मेरी तो जान है ये। दादो वली की दूर से बुलाएं लेते हुए बोली। वली के पेरेंट्स क्या करते हैं? अबीर ने चाय मंगवाई थी, वो आगे तो वो चाय का कप उठाते हुए बोली। वली की मदर नहीं है, उसके बाबा हैं और वो बिजनेसमैन हैं। दादो ने धीमे से अबीर को बताया। ओह, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अबीर वली की मदर के लिए अफसरदा से हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, दादो ने पुरस्कून से लहजे में कहा। वली और उस्मान क्रिकेट खेल कर थक गए थे और अब आकर बैठ गए थे। काफ़ी देर बातें करने के बाद उन्हें अब घर के लिए रवाना होना था। वली ने अपनी स्वीटी और उस्मान को घर छोड़ने का कहा तो वो दोनों नहीं मान रहे थे। आखिर बहुत ज़िद के बाद वो दोनों मान गए और घर के पास उतरे। दादो और वली ने फिर कभी आने का वादा किया और वली ने अबीर और उस्मान से उनका नंबर लिया और वो फिर चले गए। रात को ज़मान साहब और उनकी फैमिली अपने छोटे से किचन में 4 चेयर के डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। अब्बू, मुझे आपसे एक बात करनी है। अबीर ने ज़मान साहब को डाइनिंग टेबल से उठते देखकर जल्दी से कहा। जी बेटा, बोला। ज़मान साहब टिश्यू से हाथ साफ करके फिर से बैठ गए। अब्बू, मैं ज़ीशान से 1 साल पहले कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर मिली थी। अब्बू, वो कल अपनी अम्मी को हमारे घर लाना चाहता है। वो मुझसे प्यार करता है अब्बू, और मैं भी उसे पसंद करती हूँ। अबीर ने एक लंबा सांस खारिज करके बहुत आराम से बात का आगाज़ किया। उसने एक नज़र ज़मान साहब को देखा तो वो हैरत में डूबे अपनी बेटी को देखे जा रहे थे। अब्बू, मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों से तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ अब्बू, मैंने आज तक अपनी हदूद पार नहीं की। मेरे लिए आज भी आपकी इज़्ज़त अहम है। आप कल बस एक बार उससे मिल लें, फिर आपका जो फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा। अबीर सर झुकाए बोल रही थी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ बेटा जो प्यार को अपनी इज़्ज़त का मसला समझ ले। मेरे लिए हमेशा मेरे बच्चे अहम हैं। मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी हदूद याद है। कल शाम चाय पर बुला लो उन्हें, हम ज़रूर मिलेंगे उससे। आखिर वो हमारी बेटी की पसंद है, कुछ तो ख़ास बात होगी उसमें। ज़मान साहब अबीर के सर पर हाथ रखकर बोले और उठकर अपने कमरे में चले गए। अबीर मुस्कुराते हुए उन्हें जाते देख रही।